Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video we studied meaning of determiners, difference with adjectives and four kinds. Today we are going to study further. Let's start with articles. Articles are of two kinds. First definite and second one indefinite. Definite the and indefinite a and an. Definite the, indefinite a and an. Let's start with use of definite article the. Use of the. First, before the names of series of mountains. Series of mountains से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्याज. Rivers, the Ganga, the Yamuna, the Tapti, the Kaveri. Canals, the Sharda canals, the Panama Canal. Then oceans, the Pacific Ocean, the Indian Ocean. Seas, the Red Sea, the Black Sea, the Dead Sea. Religious books, the Mahabharata, the Ramayana, the Gita, the Bible. Directions, all the directions, the east, the west, the north, the south, the northeast, the northwest, the southeast, the southwest, the upwards, the downwards, all the directions. Unique things means जैसे for example the sun, the moon, the stars, the world, the equator, the sky, the earth. Historical empires, the Mughal Empire, then dynasty, the Chol dynasty, the Gupta dynasty. Musical instrument. We use before the musical instrument, means we use da before musical instrument, as for example, he can't play the piano, she knows how to play the guitar. Then newspapers, the Times of India, the Hindustan Times. Then public places like the zoo, the national highway, parts of body. For example, he was wounded in the leg. He caught him by the arm. Means before parts of body we use the. Second, the plus some adjective to show. The plus some adjective to show a class. For example, the rich, the poor, the deaf. Before superlative degree से पहले जैसे the biggest, the tallest, before ordinal adjectives first, second, third, fourth, next, last. The first chapter of this book is easy. The first chapter. We should remember that we do not use the before the ordinal adjective when after it we use time expressing words. For example, next day, next month, last day, last month. Before the comparative degrees to show increase or decrease. For example, the higher we go,
the cooler we feel. The cooler we feel means the higher से पहले cooler, comparatively से पहले. Before noun in clause and phrase. Before noun and clause in phrase. Before noun means जो clause है या phrase है उनसे, उनमें जो आने वाले nouns हैं उनसे पहले. जैसे for example, the boy in the corner is my friend. The boy in the corner, this is the clause, and boy is noun here, the. Use the before noun boy. जैसे the house in which I live is new. These are some examples. Let's see further. Let's see some more use of article the, as I have written on the board. Let's see. A common noun is used as an abstract noun. When common noun is used as an abstract noun, we use the. Let's see. For example, father, mother, student, all are common noun. देखिए, the father in him, the mother in her, the student in him. The father in him means father जैसे गुण, मदर इन हर मदर जैसे गुण, द स्टूडेंट इन हिम स्टूडेंट जैसे गुण. सो वी यूज बिफोर दीज नाउन्स द. यूज द बिफोर दीज नाउन्स. केस इन एपोजिशन. केस इन एपोजिशन में जैसे टैगोर. केस इन एपोजिशन एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है आपको. Tagore, the poet, was famous. Tagore, the poet, was famous. Means हमने the poet केस इन एपोजिशन से पहले दा का प्रयोग किया. डेट ऑफ मंथ्स नेम ऐसे स्ट्रक्चर में भी हम यूज करते हैं. जैसे the 14th of January. Before the name of a country and before material noun to make it particular. Means country के नाम से पहले जब हम country को particular करते हैं. जैसे the India of 1947. The India of 1947. जैसे मटीरियल नाउन. अब मटीरियल नाउन जो है, जैसे the water of this well is sweet. The water of this well means यहाँ पर्टिकुलर कर दिया वाटर को. पानी आगा इस वेल का पर्टिकुलर किया है. पर्टिकुलर अगर नहीं करना है तो वाटर से पहले नहीं आएगा. जैसे वाटर इज प्रीशियस. द वाटर इज प्रीशियस नहीं, वाटर इज प्रीशियस. लेकिन द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट. दीज आर द यूज ऑफ द. लेट्स सी फर्दर.
Let's see indefinite articles. A and N. A and N are indefinite articles. Let's see the use, how to use these A and N before nouns. Use of A. We have to consider the consonant sounds of Hindi. Consonant sounds of Hindi मीन्स हिंदी के व्यंजन की जो साउंड है उसके अनुसार हम ए का प्रयोग करते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनके अनुसार। जैसे हम एग्जांपल लें, अ यूजफुल बुक, अ चेयर, a bench, a useful book, a chair, a bench, a unit, a uniform। देखिए इनमें साउंड देखिए, य, च, ब, फिर यहां पर यू यानी य, फिर या, इनकी साउंड जो आ रही है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, हिंदी की कॉन्सोनेंट साउंड्स के अनुसार आ रहे हैं ये। जैसे लायन, ला की साउंड आ रही है तो इनके अनुसार यहां इनसे पहले ए का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। क की साउंड आई तो ए आ गया, यहां पर डा की साउंड आई तो फिर ए आ गया। हमें ध्यान रखना है, हमें साउंड के अनुसार हम प्रयोग करेंगे, जो साउंड है वो हमें ध्यान रखना होगा। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। देखिए यहां कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, या की साउंड आई फिर हमने ए का प्रयोग कर दिया। ये ध्यान रखना होगा हमें बार बार कि साउंड के अनुसार हमें यूज करना है। आई हैव अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ब की साउंड आई यहां पर, बाकी साउंड के अनुसार हमने प्रयोग कर दिया है यहां पर। देखिए गंगा इज अ होली रिवर, हा की साउंड के अनुसार हमने ए का प्रयोग कर दिया। लेट्स सी फर्दर। Now, use of and. For the use of and, we have to consider vowel sound of Hindi. मीन्स हिंदी के स्वर जो है उनकी साउंड के अनुसार हम एन का प्रयोग करते हैं। मीन्स जहां हिंदी के वोवल स्वरों की साउंड होगी वहां उससे पहले हमें एन लगाना है। जैसे मीन्स यहां देखेंगे हम वोवल साउंड ऑफ हिंदी। फॉर एग्जाम्पल, an idea, an apple, an honest man or person, an unlucky man, an interesting movie। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए यह आइडिया, आई की साउंड पर एन, अ की साउंड पर एन, ओ की साउंड पर एन, यहां अ की साउंड, फिर यहां इंटरेस्टिंग ई की साउंड। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स।
An ant is an insect. It was an important decision. It was an important decision. English is an easy language. कुछ एग्जाम्पल्स, देखिए यहां जो साउंड है ई की साउंड है इंसेक्ट, ई की साउंड एन, यहां ई की साउंड इंपॉर्टेंट एन, यहां भी ई, एन इजी लैंग्वेज, इजी एन, साउंड के अनुसार हमने प्रयोग कर दिया है इन सभी का, ये साउंड पर डिपेंड करेंगे ये सभी। मीन्स जहां साउंड जो है वोवल होगी वहां हमें एन का प्रयोग करना है, और जहां साउंड कॉन्सोनेंट की होगी इन हिंदी के वोवल्स को देखना है हमें कि हिंदी के जो वोवल्स हैं उनके अनुसार करना है, इंग्लिश के वोवल के अनुसार नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए एक बार, इट इज डैश यूजफुल बुक, देखिए ये वोवल तो है इंग्लिश का, लेकिन साउंड या की देता है, जो या जो है वो हिंदी का कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो फिर यहां ए लगेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें जो साउंड याद रखनी है वो रखनी है हिंदी की। लेट्स सी, देखिए ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, he is dash honest, देखिए दोनों में I have written two sentences। देखिए यहां honest ओ की साउंड तो एन, साउंड तो यहां भी ओ की ही है, लेकिन यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मीन्स आर्टिकल का मेरा मतलब है ए और एन से, ए और एन में कोई सा भी आर्टिकल यहां यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो हमें कोई आर्टिकल मीन्स ए और एन में से कुछ भी नहीं लगाना है यहां पर, ये ध्यान रखना है। देखिए एक बार फिर, ही इज स्टूडेंट, अब देखिए ही इज अ स्टूडेंट, सा की साउंड तो ए लगा दिया हमने, ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ही इज डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहां जो स्टूडेंट है ये तो स्टूडेंट के लिए आ गया, यहां क्या करना है हमें, देखिए यहां ई की साउंड आ रही है तो यहां एन लगाना है, जो हमारा ए और एन है वो इसके अनुसार लगेगा, स्टूडेंट के अनुसार नहीं, यहां इसके अनुसार, साउंड इससे पहले देखी जाएगी, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एक चीज और देखिए, आई हैव डैश बुक्स, अब बुक्स ज्यादा है मीन्स मोर देन वन है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ ए और एन में से कोई भी चीज कोई भी नहीं आएगा, ना ए ना एन। आई हैव बुक्स, ए और एन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहां पर, क्योंकि प्लूरल के लिए हम ए और एन नहीं लगाते, ए और एन मीन्स वन। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड आर्टिकल्स डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। In the next video, we will continue further. We will study the remaining kinds of determiners. Till then, thank you. Have a nice time.